Good morning, everyone. Okay, today we learn antonyms and also called opposites. Antonyms बोलते हैं इनको and opposites बोलते हैं. This is the play a big role in understand vocabulary. ये हमारी vocabulary enhancements बढ़ाती है. This is the very interesting. Students like it, and this is the important for all type of the students. Like school and colleges and many of the competition, like opposite type of the questions, yes, are everywhere. सब जगह पे आते हैं ऐसे questions. So first is the yes, we start very initial. इस बहुत शुरुआत से start करते हैं. What is an opposite? तो ये opposite क्या होगा? Opposite क्या होता है? So first, an opposite is when two words contradict each other. Opposite means two words contradict means भिन्न हो एक दूसरे से. Okay? They have the different merit. उनके गुण या क्वालिटी होते हैं वो अलग होते हैं. For example, big. Big means this is in the size. इसकी क्वालिटी क्या है? ये साइज में बड़ा है. And yes, the opposite of big is small. बिग का ऑपोजिट क्या होता है? स्मॉल. स्मॉल मीन्स छोटा और बिग मीन्स बड़ा. ओके, सो समटाइम वी नॉट अंडरस्टैंड अबाउट like some new words. Okay, suddenly we found some new words like suddenly we found the handsome. So what is the handsome? So someone is explain you handsome, you not understand the handsome. Handsome you understand the ugly. Okay. Yes, ugly means not good, okay, and good looking. So yes, this is the opposite of ugly. So yes, in your mind, yes, this is handsome means yes, opposite of ugly means not good looking means looking good. ये इसका looking क्या होगा? Good होगा. ये समझ में आता है. So okay, next good. Opposite is bad. Tall, short. Okay, this is very important, easy to yes in initial time. शुरुआत में ये हम easy से start करते हैं. Next, rule to change opposite. Okay, some rules to change opposite. Some of the change come the complete word. Some of the change by the prefix and some is changed by the suffix. So rule number first, by using prefix. What is the prefix? Yes, simultaneously you learn the prefix and suffix. साथ साथ में आप prefix और suffix का भी पता चल जाएगा क्या होता है. Yes, prefix means the word add yes in another word and starting and change their meanings called this prefix. So word के पहले जुड़ के और उसका meaning change करके वो prefix होते हैं. और जो yes the word and letter add with and called suffix जो वर्ड के अंत में जुड़ के और उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं उनको क्या बोलते हैं? सफिक्स. जो हिंदी में इनको पढ़ते हैं और उपसर्ग बोलते हैं. ये भी रोल प्ले करते हैं जो ऑपोजिट मीनिंग निकालने में. ओके, नेक्स्ट एज फॉर एग्जांपल. ओके, सॉरी, फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट, बाय यूजिंग प्रीफिक्स दिस. तो प्रीफिक्स दिस को दिस को यूज करके हम कौन से कौन से बना सकते हैं? ओके, फॉर एग्जांपल लाइक. ओके, सो लाइक मीन्स पसंद करना. आप किसी चीज को लाइक करते हैं तो यस एंड वी पुट द दिस. इसके पहले हमने वन ओके ये वर्ड पुट कर दिया दिस एंड ऐड विद द लाइक. डिसलाइक मीन्स नहीं पसंद करना. नेक्स्ट ऑनेस्ट. ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार. तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया दिस. नाउ बिकम डिसऑनेस्ट. डिसऑनेस्ट मीन्स ईमानदार नहीं, बेईमान हो जाता है. ओबे मीन्स आज्ञाकारी. हम अपने गार्जियंस को टीचर्स को फॉलो करते हैं. ओके, डिसओबे. ओके, समवन इज अवॉइड द गार्जियंस एंड टीचर्स. ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 2, by using prefix and. अब ये क्या है? and prefix. and ऐड होगी पहले ऐड होगी और चेंज कर देता है. ओके, हैप्पी. हैप्पी मीन्स खुश.
So now yes, we put the an. Okay, starting में रखेंगे. Now become unhappy. Means नहीं खुश. Okay, sometimes भी हम यूज करते हैं जैसे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि हैप्पी का सैड भी कर देते हैं. There are the like synonyms होते हैं जिनके many words होते हैं वैसे ही unhappy, sad. Okay, happy का joy ऐसे होता है, but happy और just become unhappy. Kind, unkind. Okay, and kind का हम cruel भी करते हैं. Yes, cruel is the synonyms means same meaning of unkind. वो unkind का same meaning होता है. Lucky, unlucky. Okay, so these are opposites. Okay, construct with prefix n. ये किससे बने हुए? prefix n लगाते हैं स्टार्टिंग में और ये बन जाते हैं. नेक्स्ट रूल नंबर 3, by using prefix in. prefix in रख के हम अपोजिट मीनिंग्स उसका अर्थ चेंज करते हैं. ओके, करेक्ट मीन्स सही, नॉट इनकरेक्ट. इनकरेक्ट मीन्स गलत. डिसिप्लिन. ओके, डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन. सो इनडिसिप्लिन मीन्स अनुशासित होता है ना. ओके, नेक्स्ट रूल 4, बाय यूजिंग प्रीफिक्स मिस. तो मिस प्रीफिक्स रखके और उसको चेंज करते हैं. यूज मीन्स काम मिलना. ओके ना, या काम. नेक्स्ट मिसयूज, जिसका कोई काम नहीं होगा ऐसे ही होना, मिसयूज. नेक्स्ट फॉर्चून. फॉर्चून मीन्स होता है तकदीर या से ना, उससे रिलेटेड होता है लकी. मिस फॉर्चून मीन्स गुर्बत, मिस गरीबी में ऐसे मिस फॉर्चून जो लकी नहीं हो. ओके, तो नेक्स्ट रूल नंबर 5. Rule number 5. By using prefix IR, IM and IN. तो ये 3 है क्योंकि साथ में दे रहा हूँ IR. ऐसा वर्ड जिसमें IR प्रीफिक्स करके उसका अपोजिट उसका मीनिंग हो वो चेंज कर. मीन्स रेगुलर मीन्स लगातार. यस, नाउ वी पुट द IR. ओके, प्रीफिक्स इसमें हमने प्रीफिक्स रख दिया IR. इरेगुलर, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? इरेगुलर मीन्स नहीं, लगातार नहीं, इस रुकावट के साथ में, नॉट रेगुलर. नेक्स्ट पॉसिबल. सो इसके साथ में हमने इन प्रीफिक्स रख दिया. इम्पॉसिबल. पॉसिबल मीन्स संभव. ओके, इम्पॉसिबल इज नॉट. ओके, नॉट इम्पॉसिबल. नेक्स्ट लीगल. लीगल मीन्स होता है विद द रूल के साथ में, और इसके साथ में आई रख देते हैं. इलीगल. इलीगल मीन्स नॉट विद रूल, रूल से अगेंस्ट जाके, नियम के अगेंस्ट जाके इलीगल. ओके, तो आई आर प्रीफिक्स आई एल एंड आई एल प्रीफिक्स रख के भी हम एंटोनिम्स बना सकते हैं. ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 6, बाय चेंज द सफिक्स. तो ये पहले तो हम प्रीफिक्स रख के ही सब वर्ड्स में क्या कर रहे थे? प्रीफिक्स रख के और उनका अपोजिट, उनका जो मीनिंग है वो चेंज कर रहे थे. राइट. अब जो है ये रूल नंबर 6, इसमें क्या होगा? बाय चेंज द सफिक्स. सफिक्स मीन्स जो एंड के लेटर्स वो वर्ड में चेंज होके जो है उनमें से चेंज होके उसका मीनिंग चेंज कर देंगे. फॉर यूजफुल मीन्स काम में आने लायक, काम में आने लायक बोलते हैं जिसको हम यूजफुल. तो उसके साथ में हम ये फुल जो सफिक्स है ना इसको हटा के लेस कर देंगे. यूजलेस मीन्स काम में नहीं आने वाला, यूजफुल का यूजलेस कर दिया. राइट. ये फुल जो है ना इसका सफिक्स को हटा के हमें क्या कहते हैं? लेस. ओके, नेक्स्ट केयरफुल. केयरफुल मीन्स एकदम से सावधानी के साथ में, तो केयरलेस मीन्स सावधानीपूर्ण. ये भी अपोजिट बनाने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट बाय चेंज प्रीफिक्स. अब जो पहले वाले सफिक्स चेंज कर रहे थे, इसमें जो एंड वाले लेटर चेंज कर रहे थे, अभी हम क्या करेंगे? प्रीफिक्स मीन्स जो स्टार्टिंग में लिखे उनको चेंज करेंगे. इनसाइड. इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ. तो इसका इन है ना उसको चेंज करके हमने आउट कर दिया. इसको आउटसाइड. अब स्टेयर्स. स्टेयर्स में सीढ़ियाँ होती है, स्टेयर्स से ऊपर की सीढ़ियाँ. तो अब इनको हमने डाउन रख दिया. आपका डाउन स्टेयर्स, तो नीचे की सीढ़ियाँ. ओके, तो इनको इस तरह से बना सकते. नेक्स्ट, दिस इज द वेरी इजी. ये सबसे इजी होता है कंप्लीट. ओके, कंप्लीट चेंज इन वर्ड्स.
कंप्लीट चेंज इन वर्ड्स, ये वर्ड्स में पूरा ही चेंज होता है, बस उसका एकदम से अपोजिट है कम। तो नेक्स्ट कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना, फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स मीन्स मित्र, ये फ्रेंड एज द गाइस में ये प्लूरल है, यस व्हेन समवन आस्क इन प्लूरल फॉर्म यू मस्ट बी पुट द आंसर इन प्लूरल फॉर्म। जब आपको प्लूरल फॉर्म में क्वेश्चन आस्क करें तो आपको आंसर भी प्लूरल फॉर्म में देना है। फ्रेंड का आप एनिमी, फ्रेंड्स है और आप एनिमी कर दिया तो वो रॉन्ग बन जाएगा, राइट ना। मित्र, ओके, तो यहाँ मित्रों बहुत ज्यादा हो गए तो फिर उसका अगर आपने दोस्त कर दिया तो वो राइट नहीं बन जाएगा, तो फ्रेंड्स एनिमीज, ओके। नेक्स्ट फास्ट, ओके फास्ट स्पीड, दिस इज द ओके एडवर्ब है फास्ट, तो इसका क्या होगा स्लो। नेक्स्ट नियर, नजदीक होता है तो इसका ऑपोजिट फार। सनराइज, समटाइम में 2 वर्ड्स साथ में भी आते हैं तो उसको उसी तरह से देते हैं। राइज का फिर आपने सनराइज का आपने सेट दे दिया और सनराइज तो सनसेट, इस तरह से आंसर राइट होता है, ओके सनराइज सनसेट। वाइज का फुलिश, तो ओके आप ये समझ गए होंगे सारे कि अल्टरनेट्स या ऑपोजिट का क्या महत्व है, ओके इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इस टाइप के क्वेश्चन ऑल क्लासेस में आते हैं। इम्पोर्टेंट है, इससे वोकैबुलरी डेवलप होती है और बहुत ईजी होते हैं। और ये दिस इज द क्यूरियस पार्ट ऑफ स्टडी, ये बहुत ही रोचक पार्ट होता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है इसमें, ओके। दिस इज द वेरी इनिशियल, ये बहुत ही शुरुआती, इसके आपके लिए थोड़े सेटअप भी आते हैं, आप ये सब देखो और अपने बुक्स में से भी जो वर्ड्स हैं उनको छांट, उसमें से छांट के आप और भी कर सकते हो, ओके। तो इसमें और क्या बता रहा था, ये हो गया। हाँ मैंने इसमें कई बार बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जैसे मैंने रिकग्नाइज किया कि सर ये वर्ब में होते हैं, नाउन में होते हैं, या कौन से सब्जेक्ट के होते हैं ना, ये मोस्टली ऑल के ही होते हैं ना। तो और पार्ट ऑफ स्पीच के और पार्ट है ना, स्पीच में भाषा के जो पार्ट्स हैं उनके सब के होते हैं। एडजेक्टिव का भी अपोजिट होता है, वर्ब का भी हो जाता है, नाउन का भी अपोजिट होता है, जैसे गो है वर्ब है, इसका हो गया ये, राइट, ओके। तो ये आपको अभी होम पे असाइनमेंट के बदौलत में दे रहा हूँ। ये जो मैंने बताया है एग्जाम्पल, आपको रूल के अकॉर्डिंग, रूल फर्स्ट, रूल सेकंड, थर्ड, एज ए अकॉर्डिंग रूल्स, ओके। सम ऑफ द रूल नंबर फर्स्ट, सम ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, सारे रूल्स के आपको 1 or 2 एग्जाम्पल रखने हैं। मिनिमम यू मस्ट make 20 opposite words, आपको 20 opposite words बनाने हैं। Of course you have to clear this topic.